May we now request the Honorable Union Minister of Human Resource Development, Srimati Smriti Jubin Irani ji, to deliver the welcome speech. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, Honorable Chief Minister Shri Tarun Gogoi ji, Honorable Governor, my colleagues in the Cabinet, Shri Jitendra Singh, Shri Sarbanand Sonowal ji, my colleague in the state who has intertwined and ensured that his sufficient support is given to central schemes, Shri Sharad ji, our dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. As the state celebrated the festival of harvest, it is a proud moment for all of us today that new leadership will be harvested through the benefit and the blessings of knowledge with the foundation laying ceremony of IIIT Guwahati and the inauguration of the Electronics and the ICT Academy in IIT Guwahati. Honorable Prime Minister, sir, your vision, a dream for Digital India becomes a reality today for these students who come here not only from the IIT family, not only from IIIT Guwahati, but I also welcome you on behalf of the students of Guwahati University and college so that these students whose greetings today resonate on this ground can reaffirm to you that under your leadership, they themselves will lead the Northeast in a new era, an era denoted by knowledge, an era where service will come before self, an era where these youngsters will write a new future, not only for Northeast, but also a nation as a whole. A resurgent Northeast, a resurgent India awaits your vision, awaits your guidance, which we all are eager to receive today. On behalf of the teams at IIT and IIIT Guwahati, I welcome all the dignitaries on the dais. Jai Hind. Thank you, Madam. May we now request the Honorable Chief Minister of Assam, Sri Tarun Gogoi, to deliver his speech. Respected Prime Minister Sri Modi ji, His Excellency Governor of Assam Asayya ji, Human Resource Minister Srimati Smriti Jubin Irani, Dr. Jitendra Singh, Minister of State, Donor, my friend Sarbanand Sonowal, Minister of State, Government of India, Sarad Barkataki, Minister of Education, Mr. Oberoi, Secretary, People Senior Chief Secretary, R.P. Singh, Mr. Dr. Gautam Biswas, Director IIT, Dr. Gautam Barua, Mentor Director IIT. I am really consider it a great privilege to welcome our respected Prime Minister in this prestigious institution, not only of the Assam, but of the whole of the country. I know how this institution was born after long pain of Assam hesitations. It was a great gift of Rajiv Gandhi. So within these 50 years, this institution earned the distinction of one of the excellent institutes all over the whole world. This Guwahati IIT, no other institute in the country has earned a distinction even within the 200 years. So thanks goes to all the director, all the students. Today, Assam is resurgent Assam. What was in 2001, everybody knows. It was passing through the very bad days. Your economy was worst, educational institution was worst, insurgency at the top of the time. Today it has completely changed.
I have seen the young boys of Assam full of enthusiasm, full of full confidence, having a high ambitions. This is the spirit of Assam. And I have seen the large number of boys and girls from Assam. They have been gone everywhere and they earned the distinctions, one of the best and talented boys in the country. Our boys and girls no less inferior to any part of the country, not only any part of the world. And our government has been giving topmost priority. Never before so many institutes, even Tata Institute of Social Science, NID, even the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum, even another new university we call Rajiv Gandhi Cooperative University, nowhere in the country. That syllabus is being done by the NID, Bombay. The Women University, where we start, is a quite different one from what you call certificate course, then diploma, up to the graduate. Not only graduate, even a doctorate also. Because without employment, without the problem of solution of our natural resources, Prime Minister has rightly mentioned in a public meeting, Assam has a natural resources. We have not been able to utilize our resources. So I want to utilize the resources. In fact, I want this IIT to involve to see how much natural resources are there, what is the strength, what is the deficiency. Because our institute should solve the problem, the local problems. I want the IIT to involve so that all problems can be solved, so that our boys and girls go ahead. I don't like to take much of your time. I am very grateful to the Prime Ministers. In fact, I want, particularly in the field of education, I want his help. Because here, you see, private people are not interested. Even Gujarat, they spend a lot of money. Even Maharashtra, even in South India. So I am not as lucky as Modi ji. He comes from a Gujarat, a very rich state. I come from a poorer state, but I don't want to be left behind. And I have no doubt, with his blessing, we'll go ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Now there will be a screening of a short film on the Indian Institute of Information Technology, Guwahati. The Indian Institute of Information Technology, Guwahati, is one of the 20 IIITs being set up by the Government of India in not-for-profit, public-private partnership mode. IIIT-G started operations in August 2013 and is currently functioning from temporary premises within the Assam Textile Institute campus at Ambari, Guwahati. The institute currently offers B.Tech degrees in Computer Science and Engineering and Electronics and Communication Engineering, as well as PhD degree in CS, EC and Humanities and Social Sciences. Our mission is to establish a world-class ICT education institution with equal emphasis on teaching, research and collaboration with the industry. Our vision is a thriving ICT industry in Assam, which is anchored by IIIT Guwahati. The institute has a total of 205 students, including 179 B.Tech and 26 PhD scholars who are staying in a flat complex at Panjabari area of Guwahati. Here are a few students speaking on life at IIIT. Anubhav Pandey. I'm from the 2013 batch of IIIT Guwahati. We are the first batch of this institute. So we had quite a load and pressure to set the path and to take the institute to its height. I belong from Lucknow, UP. My name is Ankita Barua and I am from Guwahati itself, and I am studying in the second year in IIIT-G EC branch. So the first thing I would like to say is that it is a very homely environment here. We are a very compact environment. The permanent campus of the institute is coming up at Huntola village in Bongora, which is about 4 kilometers from the Guwahati airport. Construction started in 2015 and is expected to be completed by July 2017. The entire IIIT-G family, comprising students, PhD scholars, faculty and staff, is looking forward to this new campus and towards a vibrant intellectual life.
May we now request the Honorable Prime Minister to unveil the plaque to mark the foundation stone laying of the campus for Indian Institute of Information Technology, Guwahati. May we also request the Honorable Prime Minister to inaugurate the Electronics and ICT Academy to be located at IIT Guwahati by pressing the remote button and unveiling the plaque. Government of India has approved setting up of 7 electronics and ICT academies in the country for training faculty members and various streams. IIT Guwahati has been identified for setting up one such academy to cater to the northeastern states. This academy will facilitate development of human resources to meet the industry's needs and enhance employability of students of this region. The much awaited moment is now here. May we request the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, to kindly deliver his address. असम के राज्यपाल श्रीमान पद्मनाभ आचार्य जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के हमारे साथी श्रीमती स्मृति ईरानी जी, श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, डोनर विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, असम राज्य के मंत्री श्रीमान शरद जी, डॉक्टर आरपी सिंह, श्रीमान गौतम बरुआ जी, श्रीमान गौतम विश्वास जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, नौजवान साथियों, और इस समय ऑनलाइन नॉर्थ ईस्ट के कई विद्यार्थी भी इस समारोह में शरीक हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में बहुत विलंब हुआ। क्योंकि आज सुबह मुझे सिक्किम से चलना था, लेकिन वेदर साथ नहीं दे रहा था, बार बार समय बदलना पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार पहुंच ही गया। कभी कभी देर होती है लेकिन पहुंचता हूं। आज यहां 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो ट्रिपल आईटी का नए भवन का शिलान्यास
और दूसरा आईसीटी एकेडमी की शुरुआत। हम सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, लेकिन 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, इसका कारण क्या है? तो पूरा विश्व ये मानता है कि 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है, इंफॉर्मेशन की सदी है, और इसलिए जो इंफॉर्मेशन नॉलेज उस क्षेत्र में अगुवाई करेगा वह दुनिया की अगुवाई करेगा, वो लीडरशिप करेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। % जनसंख्या इस देश में 35 साल से कम उम्र की है, 35 से भी नीचे है। जिस देश में सदियों से एक परंपरा रही है, जब जब मानव जात ज्ञान युग से गुजरी है, हमेशा हमेशा भारत ने नेतृत्व किया है। और अगर 21वीं सदी में डेमोग्राफिक डिविडेंड ये अगर हमारी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या में जिस देश के पास नौजवान हो तो उसके सपने भी जवान होते हैं। और जवान सपनों में समर्पण का भाव भी होता है, ऊर्जा भी होती है। भारत इस परिस्थिति का फायदा कैसे उठाए, इस अवसर को भारत किस प्रकार से दुनिया के विश्व के पटल पर एक शक्ति के रूप में उभर सके, ये अवसर भी है, चुनौती भी है। और जिंदगी बिना चुनौतियों को कभी सफल नहीं होती है। जो चुनौतियों को पार करता है वही अवसर को पाता है, और वही अवसर को सिद्धि में परिवर्तित कर सकता है। आज पूरे विश्व में जितने भी मानकों पर दुनिया की चर्चा होती है, चाहे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देख लीजिए, IMF का रिपोर्ट देख लीजिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ग्लोबल लेवल की कुछ कहें, एक बात साफ साफ उभर करके आती है, और सर्वदूर से एक ही प्रकार से आती है, और वो ये कि आज बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली कोई इकोनॉमी है तो वो इकोनॉमी का नाम है हिंदुस्तान। आए दिन खबरें आती हैं कि दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का माहौल है। विश्व आर्थिक संकट में घिरा हुआ है। ऐसे संकट के काल में एक अकेला हिंदुस्तान अपने पैरों पर स्थिर खड़ा है और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। और यह भी विश्व मानता है कि आने वाले दिनों में भारत इससे भी अधिक
गति से आगे बढ़ने वाला है। ये जो अवसर आया है, इस अवसर का अगर फायदा उठाना है तो हमें हमारी युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और इसलिए सरकार ने जिन बातों पर ध्यान दिया है वे बिखरी हुई चीजें नहीं है। सरकार में है, कुछ करना पड़ता है, चलो कुछ करते रहें, ऐसा भी नहीं है। एक के बाद एक कदम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। एक के बाद एक कदम अंतिम परिणाम को प्राप्त करने का अवसर है। पहली बार इस देश में स्किल डेवलपमेंट एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। पहले क्या था, हर डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से स्किल डेवलपमेंट का काम करता था। लेकिन जब इतने बड़े डिपार्टमेंट के कोने में स्किल डिपार्टमेंट चलता है तो उसके पर फोकस नहीं रहता था। चीजें चलती थी, कागज पे सब दिखता था, लेकिन धरती पर नजर नहीं आता था। हमने अलग स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया और पूरे देश में 21वीं सदी के अनुकूल किस प्रकार का मैन पावर तैयार करना चाहिए, किस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाहिए, और न सिर्फ हिंदुस्तान, वैश्विक संदर्भ में, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। आप कल्पना कर सकते हैं जब दुनिया पूरी बूढ़ी हो रही हो, दुनिया के पास पैसे हो, उद्योग कारखाने लगे हुए हो, लेकिन चलाने के लिए नौजवान न हो तो क्या होगा? पूरी विश्व को 2030 के बाद बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। ग्लोबली मैन पावर पहुंचाने का काम अगर कोई कर सकता है, हिंदुस्तान कर सकता है। दुनिया के हर कोने में भारत का नौजवान जाकर के उस देश के जीवन में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। वो दिन दूर नहीं है जब पूरे ग्लोबल रिक्वायरमेंट को अगर ध्यान में रखें तो आज से हमारा प्रयास है कि हिंदुस्तान में वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, वो मैन पावर तैयार हो जो आने वाले दिनों में ग्लोबल रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाए। दूसरी तरफ भारत सिर्फ सेवादार बना रहे क्या? तो ये बात तो हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए हमारे देश में हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। आज देश पेट्रोलियम पैदावार के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट, जो पहली 3-4 चीजें हैं देश में जिसमें हमारा सबसे ज्यादा धन विदेश में जाता है, उसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट। चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल डिवाइसेस हो। अब जिस देश में ऐसी बढ़िया आईआईटी हो, जिस गुवाहाटी के आईआईटी के जो गुवाहाटी यहां की आईआईटी के कारण पहचाना जाता है,
यहां के आईआईटी ने गुवाहाटी को एक नई पहचान दी है। लेकिन उस देश में इलेक्ट्रॉनिक गुड भी हमें इंपोर्ट करना पड़े, ये अच्छी बात है क्या? थर्मोमीटर भी बाहर से लाना? बीपी कम हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ नहीं हुआ, वो भी फॉरेन का इंस्ट्रूमेंट तय करेगा क्या? दोस्तों, ये चीज बदलनी है। मैं आज आपके बीच आया हूं चुनौती लेकर के। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये तो हम बना सकते ऐसा नहीं, हम दुनिया को दे सकते हैं। इस देश के पास टैलेंट की कमी नहीं है, इरादों की भी कमी नहीं है। हर नौजवान के पास कुछ न कुछ करने का इरादा है। तो क्यों ना हम हमारे देश की इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, मेक इन इंडिया की बात को आगे बढ़ाएं। और दुनिया ने भारत के लोगों का लोहा माना है। आज सिलिकॉन वैली में जाइए, एड्रेस तो यूएसए का है, लेकिन चेहरा हिंदुस्तानी है। हर तीसरी चौथी कंपनी का सीईओ हिंदुस्तानी है। 50%, 60% काम करने वाले नौजवान हिंदुस्तानी है। इस देश के पास टैलेंट भी है। भारत ने मार्स मिशन किया, ऑर्बिट में हम पहुंचे। दुनिया में हम पहले देश हैं जो मार्स ऑर्बिट मिशन में पहले ही ट्रायल में सफल हो गए। दुनिया के और देशों ने सफलता 20-20, 25-25 बार ट्रायल करने के बाद मिली, भारत को पहली बार मिल गई। और खर्चा कितना? आप गुवाहाटी में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाएं तो 10 रुपया लगता होगा। हम मार्स मिशन में सिर्फ 7 रुपया किलोमीटर पर गए। हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है, उससे कम खर्चे में हम मार्स मिशन पर पहुंचे। ये कैसे संभव हुआ? हमारे नौजवानों की टैलेंट के कारण, तजुर्बे के कारण, कुछ कर गुजरने के इरादे के कारण। जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो, तो वो देश का प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का सपना क्यों न देखे। हमारा दूसरा क्षेत्र है डिफेंस। क्या भारत अपनी सुरक्षा के लिए आजादी के 70 साल के बाद भी औरों पर डिपेंडेंट रहे? अश्रु गैस जो है ना, अश्रु गैस रोने के लिए भी, टीयर गैस, वो भी बाहर से लाना पड़ता है। ये स्थिति बदलनी है दोस्तों। हम हमारी रक्षा के लिए जो आवश्यकता है वो तो हम बनाएं, इतना ही नहीं, दुनिया को हम सप्लाई भी करें, ये ताकत हमारी होनी चाहिए। हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते हैं। और आप में से कई लोग हैं मेरे से जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर। कुछ लोग मेरी नरेंद्र मोदी ऐप पर भी कुछ न कुछ लिखते रहते हैं गुवाहाटी से। लेकिन मोबाइल फोन बाहर से लाना पड़ता है। और इसलिए दोस्तों, हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे ट्रिपल आईटीज हैं,
हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां मेक इन इंडिया का मुझे माहौल क्रिएट करना है। अभी से विद्यार्थी के मन में विचार होना चाहिए कि मैं शस्त्रास्त्रों की दुनिया में भारत को ये अमानत दूंगा ताकि दुनिया हमें कुछ न कर पाए। हम आईसीटी के क्षेत्र में जा रहे हैं। आईसीटी हम व्यापार धंधे के लिए नए नए सॉफ्टवेयर बनाने की ताकत तो क्रिएट कर लें, लेकिन दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सारी दुनिया के सामने है, और वो चुनौती है साइबर सिक्योरिटी की। हर कोई परेशान है, कहीं कोई हाईजैक तो नहीं कर लेगा, मेरी पूरी फाइल चली तो नहीं जाएगी, मैं रिसर्च कर रहा हूं कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, दुनिया को कोई ठप तो नहीं कर देगा। हवाई जहाज उड़ता होगा और साइबर अटैक करके उसको वहीं रोक दिया जा सकता है और फिर वो नीचे ही आएगा। ये संकट है, दुनिया डरी हुई है। टेक्नोलॉजी ने जहां जहां पर हमको पहुंचाया है, तो उसके साथ हमारे सामने चुनौतियां भी आई हैं। क्या हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवान विश्व को साइबर सिक्योरिटी देने के लिए नेतृत्व नहीं कर सकते क्या? अगर दुनिया में किसी को भी साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होगी, भारत के नौजवान पर उसको भरोसा करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको ये काम होगा। ये नहीं कर सकते क्या? और इसलिए दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के मेक इन इंडिया, 2 दिन पहले आप में से कई लोग शायद मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए होंगे, जब मैं 2 दिन पहले दिल्ली में स्टार्टअप का आरंभ किया। जब मैं पहले स्टार्टअप कह रहा था तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं पड़ता क्या कह रहा है ये। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जब लाल किले से हमने कहा तो ऐसे ही आकर के चला गया विषय, पता ही नहीं चला कि कहीं रजिस्टर ही नहीं हुआ। लेकिन अभी जब स्टार्टअप का कार्यक्रम हुआ, लाखों नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। एक नया मूड बना है देश में। नौजवान सोच रहा है मैं रोजगार के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, मैं अपने पैरों पर नई चीज खोज करके दुनिया के बाजार में ले आऊंगा, नए तरीके से ले आऊंगा। स्टार्टअप का एक माहौल बना है। वर्तमान में जो नई पीढ़ी है वो जॉब सीकर नहीं बनना चाहती है, वो जॉब क्रिएटर बनना चाहती है। और सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के भरोसे उसे बल देना चाहती है। और इसलिए अभी आपने देखा होगा, हमने कई नई योजनाएं घोषित की है, नए इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि भारत दुनिया का स्टार्टअप का कैपिटल बन सकता है। जिस देश के पास इतनी टैलेंट हो, वो दुनिया का कैपिटल बन सकता है। और मैंने देखा, आपने भी शायद टीवी पर ये चीजों को ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इंटरनेट पर सारी चीजें इन दिनों अवेलेबल है। 22, 25, 27, 30 साल के नौजवान अरबों खरबों रुपए का व्यापार करने लगे और 2-3 साल में करने लगे, और 5,000, 10,000, 25,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जस्ट अपना दिमाग और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। और जमाना ऐप का है, हर चीज का ऐप बनता है, ऐप बनता है और दुनिया जुड़ जाती है। मैं भी अब जुड़ गया। लेकिन हमारे नौजवानों की जो बुद्धिमत्ता है, वो कुछ कर गुजरने की बुद्धिमत्ता है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट से लेकर के स्टार्टअप तक की यात्रा, मेक इन इंडिया, पहले मेक फॉर इंडिया और बाद में मेक फॉर ग्लोबल, ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसमें टेक्निकल फोर्स एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर हाथ में हुनर होना चाहिए। कभी कभी हम लोग रोते बैठते हैं। हमारे देश में कुछ ये भी आदत है, समस्याएं होती है, हर किसी के नसीब में मक्खन पे लकीर करने का सौभाग्य नहीं होता है।
पत्थर पर लकीर करने की ताकत होनी चाहिए। और अगर हम अपने आप को युवा कहते हैं तो उसकी पहली शर्त ये होती है तो वो मक्खन पर लकीर करने के रास्ते न ढूंढे, वो पत्थर पर लकीर करने की ताकत के लिए सोचे। अगर ये इरादे लेकर के हम चलते हैं तो हम अपनी तो जिंदगी बनाते हैं, लेकिन कईयों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कारण भी बनते हैं। तो भारत में हमारी जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे आईआईटी हो या हमारी आईटीआई हो, छोटे से छोटी टेक्निकल इकाई से लेकर के टॉप मोस्ट टेक्निकल वेंचर, इन दोनों के अंदर एक सूत्रता होनी चाहिए और हम देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सामर्थ्यवान बने। समस्याएं अपने आप उसका रास्ता भी खोज करके आती है। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसके कोख में समाधान भी पलता ना हो। सिर्फ पहचानने वाला चाहिए। हर समस्या की कोख में समाधान कभी पहलता है, उस समाधान को पकड़ने वाला चाहिए, समस्या का समाधान निकल आता है। मैं चाहूंगा मेरे नौजवान चीजों को देखें तो उसके मन में पहले ये ना आए कि यार ऐसा क्यों है, जो सो है यार, ये है, ऐसा करेंगे तो ये नहीं रहेगा। हम बदलाव ला सकते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया को हम बदले। पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में स्कूल के कुछ बच्चों को बुलाया गया था। हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे लोगों को काफी एनकरेज करने के अनेकविध कार्यक्रम करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा, मोदी जी एक बार आइए, जरा देखिए। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे थे और मैंने देखा कि स्वच्छ भारत के विषय में टेक्नोलॉजी क्या रोल कर सकती है, कौन सी इनोवेटिव इक्विपमेंट क्रिएट किया जा सकता है जो स्वच्छ भारत के लिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है उसकी पूरी कर सके। 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चों ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई थी, मैं हैरान था। इसका मतलब यह हुआ कि हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य होता है। अगर इंडिया के पास मिलियन प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान के पास बिलियन ब्रेन भी है। और इसलिए दोस्तों, नया भवन तो मिलेगा, हिंदुस्तान के पूर्वी शोर में ये ज्ञान का सूरज ऐसा तेजोमय रूप में निकले को पूरे हिंदुस्तान को ज्ञान से प्रकाशित कर दे। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। That was our Honorable Prime Minister in his ever-inspiring words. Now, the Director of Indian Institute of Technology, Guwahati, Sri Gautam Biswas, shall offer the vote of thanks. It is indeed an honor for me to give this vote of thanks. On behalf of the entire community of IIT Guwahati, I would like to place our deep gratitude and heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, for coming to IIT Guwahati and delivering an inspirational address to the students of this region. In fact, this is the first official visit of Honorable Sri Narendra Modi ji to any IIT. Sir, your visit is a momentous occasion not only for IIT Guwahati but also for the entire northeastern region. Your address was
truly very inspiring and uplifting. All of us present here will treasure every moment of this occasion. There could not have been a more auspicious beginning of the year for IIT Guwahati than to have you amongst us. Thank you so much, sir. We would like to thank the Governor of Assam, Sri Padmanabha Balakrishna Acharya ji, for his gracious presence on this occasion. Thank you very much, sir. We would like to thank the Honorable Chief Minister of Assam, Sri Tarun Gogoi Dangoria, for coming here and addressing the gathering. Sir, we are indeed grateful to you for your endless inspirational support for IIT Guwahati. Thank you very much, sir. We are thankful to the Honorable HRD Minister, Srimati Smriti Jubin Irani ji, for adding to the occasion with her gracious presence. We would like to thank her for delivering the welcome address. Thank you very much, madam. We would like to thank Union Minister of State, Donor and PMO, Sri Jitendra Singh ji, Union Minister of State, Youth Affairs, Sri Sarbanando Sonowal Dangoria, and the Education Minister of State, Sri Sharat Barkatoki Dangoria, for being here amongst us in spite of their very busy and hectic schedule. We would like to thank the Chief Secretary of Assam, Sri V.K. Piparsenia ji, and Secretary MHRD, Sri V.S. Oberoi ji, for their invaluable support in organizing and coordinating this grand event. We would like to thank the SPG for taking all the security measures. It was a great comfort for us to know that all the security concerns were taken care of by them. Our sincere thanks to State Administration for their untiring effort and wholehearted support. We are grateful to all security personnel and the volunteers for their dedicated effort to make this event successful. Last but not the least, big thanks are due to the wonderful audience, which is an amalgamation of people of different age groups, from the school kids to the students of Cotton College University, Guwahati University, IIT Guwahati, and IIIT Guwahati, faculty members, staff members, and invited guests. We are grateful to the audience at remote locations who are connected to the meeting through NKN. We are also grateful to all the staff members of NKN, BSNL, and DAITY. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat.